Good morning, everyone. Today we will do the left four question answers of chapter motion. So, up to sixth questions we have discussed. Today we will start from question number 7. A ball is gently dropped from a height of 20 meter. Means initially जो ball है वो rest पे है. Initially the ball is at rest और उसको एक height से drop किया जा रहा है. The height is 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. Meter per second square is the unit of acceleration. So this is acceleration. With what velocity will it strike the ground? Means final velocity. What is the final velocity? After what time will it strike the ground? And we have to find time also. So what we have given? Height. Height means distance. Distance is given 20 meter. Acceleration is given 10 meter per second square. Initial the object is at rest, so initial velocity is 0. We have to find final velocity v and time t. So by using equations of motion, we have three equation of motion. V square minus u square is equal to 2as, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square. So what can we find from here? U given, a given, s given, we have to find v. So this equation is suitable. V square is equal to u square plus 2as. We can write it as, fine. Putting the value of u is what? 0 plus 2. A is what? 10. And s, the value of s is 20. So this will come out v square is equal to 400, or v is equal to square root of 400, or v is equal to 20 meter per second. This is v meter per second. Now what we have to find out? We have to find out the value of t. So v value we have, u we have, a we have, we can find out t from here. So by putting v is equal to u plus at, what we get the value of t? V minus u upon a. V is 20 minus u is 0 upon a is 10. So this is basically 20 upon 10. 2 second is the answer. This is the simplest numerical. Now let me move towards question number 8. This is a graph. See, this is question number 8. A graph is given in your book and there are two parts of this question. Find how far does the car travel in first 4 seconds. This is the time axis and this is the speed axis. Time is given 0, 2, 4, 6, 8, 10. Okay, तो हमें find करना है how does the car travel in first 4 seconds. So first 4 second में कार ने कितना travel किया? कार ने around 6 travel किया. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड. मीन्स ड्यूरिंग 4 सेकेंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो उसका हमें एरिया शेड करना है. जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ होता है, स्पीड टाइम ग्राफ होता है, उसके अंडर का जो एरिया होता है वो हमें देता है डिस्टेंस. ये बात हमें पता है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ओनली डायरेक्शन मैटर्स हियर. तो फर्स्ट 4 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो एरिया है, ये एरिया हमने क्या कर दिया? शेड कर दिया. ठीक है, तो ए क्वेश्चन सॉल्व हुआ. नाउ बी पार्ट. विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार. यूनिफॉर्म मोशन मीन जैसे जैसे टाइम जा रहा है, स्पीड क्या हो रहा है? कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है. अब ग्राफ जो जनरली रिप्रेजेंट करता है, जहां पर भी बॉक्सेस में चेंज होता है वहां पर इट मींस वैल्यू में भी चेंज हो रहा है. अगर एक लाइन के अकॉर्डिंग या इस लाइन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज बिल्कुल सेम टू सेम जा रही है तो वहां पर वो कांस्टेंट है. नाउ लुक एट द ग्राफ दैट आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ग्राफ आपका जा रहा है, एक पूरी लाइन को ट्रेवल कर रहा है. तो आफ्टर 6 सेकेंड जो ग्राफ है वो आपका क्या कर रहा है? आफ्टर 6 सेकेंड के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रहा है, और इससे पहले जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म नहीं है. सो बोथ द पार्ट्स आर सॉल्व. नाउ मूव टुवर्ड्स 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस. ठीक है, फर्स्ट है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर है
तो इसका क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है। सो सिचुएशन क्या है, अ बॉडी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, कि बॉडी है उसकी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो, मींस या तो वो नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी जीरो हो। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगी, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब भी कोई बॉडी आपकी एक्सेलरेट होती है ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहां पे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे जा रही है, सपोज कोई हाइट है, यहाँ पर बॉडी हमारी रखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी जीरो है। जैसे ही इसको नीचे फेंका जाएगा, तब उसके बाद से जैसे ही इसको गिराया गया तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, नीचे आएगी तो उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल हुआ जब कोई एक आपका ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे आता है, तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट its velocity is zero and after it is having constant acceleration. So ये इसका example. Now move towards next question. An object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction means object is moving in this direction and the acceleration is its perpendicular. So very common example of this is a circular motion, because at each and every point we have discussed it, at every point the object changes its direction, okay, and the tangent to this point is giving the direction of motion, okay. This is the center and we all know that if a boy is standing in the center और वो क्या कर रहा है, एक थ्रेड से पूरा सर्कुलर मोशन करवा रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट का, तो वहां पर एक इंटरनल एक फोर्स लगती है इनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे देखिए, द ऑब्जेक्ट जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, जो कि ऑब्जेक्ट की मूविंग डायरेक्शन दे रहा है, और जो इनवर्ड फोर्स लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज गिविंग अस एक्सेलरेशन, वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो दोनों के डायरेक्शन है ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बी पार्ट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. See, in question number 10, an artificial satellite is moving in a circular orbit. कोई artificial satellite है, जैसे अर्थ के अराउंड लगा लीजिए, ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ एक artificial satellite है जो घूम रही है। रेडियस 42250, सो रेडियस कितनी है, 42250 किलोमीटर। हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ओके। हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है, स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिनोटेड बाय v। सर्कुलर मोशन में जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस वो कितना लेगा, इसका पैरामीटर लेगा, विच इज 2πr अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला हो गया सर्कुलर मोशन में स्पीड निकालने का। 2 पाई 22/7 r 42250 and time is 24 hour. So we can take it in the unit of hours also, क्योंकि हमारी जो रेडियस है वो किलोमीटर में है, अगर हम आवर्स में लेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर वैल्यू हो जाएगी उसकी, तो इसको हम 24 कर सकते हैं। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो अराउंड आएगी, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 1.1 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अराउंड ये वाली वैल्यू आएगी। अगर आप इसको किलोमीटर पर सेकंड में आपसे पूछा जाता है तो आप किलोमीटर पर सेकंड में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है इसको आप लोग 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो आंसर है ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। और आंसर जो आएगा वो आएगा 3.06 किलोमीटर पर सेकेंड। So with this question, the chapter is over. If you have any doubt, then review the videos and you can see the videos again and again till you got the complete topic. Okay, thank you.